कठिन राह में कदम पर पल बढ़ाती गई, हर शिकस्त को अपनी जीत बनाती गई। लफ्ज़ों के संग तराशी की जैसे आदत हो, अपने ख्वाबों को हकीकत में ढालती गई। हाथ में कलम था बस ख्वाबों की रोशनी, हर ख्वाब को अपनी बातों में सजाती गई। जुनून ने रोका, ज़माने ने ठोकर भी दी, मैं फिर भी अपने अज़्म को उठाती गई। आज भी मैं वही जो कल फकत ख्वाब था, मैं अपने खुद को यही बताती गई। पहला दिन। यह सब खिज़ा की एक रुखी फीकी ही बुध से शुरू हुआ था, बल्कि एक रात पहले से जब नफीसा ने मुझे कॉल की थी। नफीसा और मैं कई साल पुराने दोस्त हैं। हमारी मुलाकात कम कम ही होती है, लेकिन जब मिलते हैं तो हमें तकल्लुफ़ात की ज़रूरत नहीं होती। हम फ़ौरन से पहले बोलने लग जाते हैं और यूं अंदर का गुबार निकल जाता है। फिर हम कई की उन्हें मिलते। हमारी दोस्ती ऐसे ही चक्रों में गोल गोल घूमती रहती है। मंगल की रात नफ़िया ने मुझे कॉल की थी। मैंने इसको ये मुझे ठीक से याद नहीं, क्योंकि अब इस बात को चंद बरस गुजर चुके हैं, मगर इसके अलावा मुझे बुध का सारा दिन ठीक ठीक याद है। नफीसा ने कॉल पर बताया कि वो अपने किसी ज़ाती मसले को लेकर परेशान है। वो मुझसे बात करके इस मसले का हल तलाश करना चाहती है और उसको चेंज की भी ज़रूरत है। हमने ने किया कि सुबह हम कहीं मिलेंगे, अपने घरों से दूर किसी अच्छी जगह खाना खाएंगे, खूब इंजॉय करेंगे और फ्रेश होकर अपनी ज़िंदगियों में वापस जाएंगे। वो एक गर्ल्स डे आउट था। बुध की सुबह नफीस 8 बजे ही मुझे पक करने पहुंच गए। वो अच्छी ड्राइव जय करती थी, ना झटके देती, ना तेज़ चलाई और ना जगह जगह रुकती।
اس کی باتیں بھی اس کی ڈرائیونگ جیسی ہوتی تھی، سکون سے چلتی جاتے مجھے پک کر کے اس نے کار سڑک پر ڈال دی اور حسن روایت بولنا شروع ہو گئی۔ یہ دن نفیسہ کے نام تھا۔ میں اپنی فرینڈز میں ایک اچھی کا ڈانسر کے طور پر جانی جاتی ہوں۔ کسی کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہو میں حاضر ہوتی ہوں۔ میں اس روز نفیسہ کے ساتھ اس لیے باہر لیا کی تھی تاکہ اس کو اچھا محسوس کرو اس کو اور ہم دونوں مل کے اس کے مسئلے کا حل تلاش کریں۔ مجھے امید تھی کہ آج غیر مل کے دل کے ساتھ گھر واپس جائے گی۔ ابھی صبح کے 8 بجے تھے، کوئی ریستوران نہیں کھلا تھا۔ نفیسہ کار ہماری یونیورسٹی کے پارکنگ ایریا میں لے آئے۔ گو کہ پارکنگ لاٹ ابھی نیم دیران تھا مگر وہاں ہر جگہ پرانی یادوں کا ہجوم اکٹھا تھا۔ ہم دونوں کار میں بیٹھے ہوئے باتیں کرنے لگے۔ میں نے اس سے اس کا مسئلہ پوچھنا چاہا، دورتانے لگی لیکن مجھے اس کی بات مجھ میں نہیں آئے۔ اس کے الفاظ آپس میں گزر ہونے لگے۔ مجھے اتنا یاد ہے کہ میں نے نفیسہ کو چند فکروں کے بعد کہتے سنا، تم مجھے ویسے تسلی نہیں دے ہیں جیسے دیا کرتی ہو۔ سنو، کیا تم ٹھیک ہو؟ تم بہت ڈل لگ رہی ہو۔ نہیں تھے، اور تب مجھے احساس ہوا تھا کہ میں ٹھیک نہیں تھی۔ میں کافی عرصے سے ٹھیک نہیں تھی۔ مجھے بہت سے بار جیسے کسی نے جھنجھوڑا تھا۔ میں گہری نیند سو رہی تھی۔ سوئے ہوئے شخص کو نہیں معلوم ہوتا کہ وہ اپنی زندگی کس طرح ضائع کر رہا ہے۔ اسے احساس تک نہیں ہوتا کہ اس کی آنکھیں اسے جو مناظر دکھڑی ہیں دواس کے خواب ہیں۔ باعث حقیقت نہیں، ایک الویژن ہے۔ جو لوگ اس الویژن میں اس کے ساتھ ہوتے ہیں وہ حقیقی نہیں ہوتے، اور وہ غیر حقیقی لوگ اس کو اس لیے نہیں ہوگاتے کیونکہ اس کی وجہ سے ان کی تالی دنیا مکمل ہوتی ہے۔ کوئی اسے کیوں نیند سے لگا لے گا؟ ایسے میں نافل ہوتے شخص کو باہر کے کسی شخص کی آواز جادو کے سوئی کی طرح چھیتی ہے جو کہانیوں میں شہزادیوں کو نیند کی وادی میں اتارا کرتی تھی۔ لیکن ساری کہانیاں کیا نہیں ہوتی، اور ساری سوئیاں ملاقی نہیں ہیں۔ تغیر کی آواز پہ مجھے یہی چین محسوس ہوئی تھی۔ پھر خون رسنے لگا، اور تب ایک دم سے درد کا احساس جاگا۔ کوئی لمحہ آپ کی زندگی میں ایسا آتا ہے جہاں سے زندگی بدلنا شروع ہوتی ہے۔ آپ خواب سے جاگتے ہیں، آپ کے گردنی شیشے کی نفلی دنیا چھٹاکے سے ٹوٹ جاتی ہے۔ پھر کئی برس گزر جائیں، جب بھی آپ کو وہ شخص، مقام، وقت، ہر شے آ رہت ہے جس نے آپ کو جھنجھوڑ کے جگایا ہوتا ہے۔ مجھے یونیورسٹی کا پارکنگ لاٹ نہ کی کار کی ونڈ اسکرین سے باہر نظر آتا نظر اکتوبر کی عدد اس صبح سب یاد ہے۔ بھی 2 دن تھا جب میں نے خود سے بھی بولنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں ان دونوں پر بند تھی، اور بیڈ پریشن ایک طویل عرصے سے میرے اندر بڑھتا جا رہا تھا، مگر میں تسلیم کرنے پر راضی نہیں تھی کہ میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہے۔ جب نقیب نے مجھے کہا کہ تم ٹھیک نہیں ہو، میں تمہیں جاتی ہوں، تم یقیناً کسی ڈارک نیز میں ہو۔ جب مجھے احساس ہوا کہ میں نے اپنے ارد گرد جو اب ٹھیک ہے کہ دیواریں کھڑی کر رکھی ہیں وہ حقیقی نہیں ہیں، ایک ذرا سی چین پر وہ ٹوٹے کانچ کی طرح ڈھہ گئی تھی۔ مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ مجھے درکار ہے اپنی مدد۔ آپ کی زندگی بظاہر دوسروں کو پرفیکٹ نظر آتی ہے، آپ کامیاب ہیں، مشہور ہیں، آپ کی کتاب ملک میں سب سے زیادہ میں سے ہیں، لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں، خاندان ہو یا کولیگز، ہر جگہ لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں، اور چونکہ آپ کو ہمیشہ سبت رہنے اور مسکرانے کی عادت ہے 100 لوگ آپ کو خوش باش مسکراتا ہوا۔ نفیہ نے مجھے بہت عرصے بعد دیکھا تھا اور وہ مجھے برسوں سے جاتی تھی۔ اس کو دیکھتے ہی معلوم ہو گیا کہ میں آتی شدید بے سن ہوں کہ اب میری 2 نگردینی نظر آنے لگ گئی ہے۔ 2 اپنا مسئلہ بھول گئی اور ہم میری بات کرنے لگے۔ میں نے اسے کہا کہ بظاہر میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہے لیکن میں خوش نہیں ہوں۔ میں ایک مشین کی طرح ایک روٹین میں زندگی گزار رہی ہوں۔ میرا ہر قدم کیل کو لید اور پان شدہ ہے۔ میر بھی زندگی میں کسی چیز کی نہیں ہے، لیکن ایسے لگتا ہے جیسے میں اپنے آپ میں کلر فیل ہو گئی ہوں۔ اپنے حالات میں کچھ زیادہ ہی کملر فیل ہو جاتا ایسے شخص کی طرح ہے جو آرام سے 100 بار بتا ہے اور اس کا وقت ضائع ہوربا ہوتا ہے۔ میں نے اپنی کمفرٹ زون سے باہر نکلنا چھوڑ دیا تھا، خود و پیچ کرنا چھوڑ دیا تھا، یہاں تک کہ میں نے لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا۔ میں نے نئے دوست بنانے چھوڑ دیے تھے۔ میں جیسی تھی ویسے ہی رہنا چاہتی تھی۔ بعض اوقات پھل اندر سے نگل چکا ہوتا ہے، میں اپنے دل کے مقام سے، لیکن اس کا خوشنما رنگ دیکھ کے کسی کو معلوم نہیں ہو پاتا۔ میرا دل بھی کسی پھل کی طرح گل رہا تھا اور میں نہیں جانتی تھی کہ خود کو کائے بغیر اس مجلے ہوئے حصے کو کیسے باہر نکال پھینکوں۔ ہر کسی کے ڈپریشن کی کوئی یہ نہیں ہوتی، یہ تو ایک بیماری ہے جو کسی کو لگ جاتی ہے، کسی کی زکام کی طرح جلد ختم ہو جاتی ہے، کسی کے دل کا کینسر بن جاتی ہے۔ اکٹھے چند گئی نفیسہ شہر کی سڑکوں پر گاڑی دوڑاتے مجھے سنتی اور خود براتی رہی، بلکہ ہم دونوں بھی بولتے رہے۔ جو میرے اندر تھا وہ آہے بر آنے لگا۔
और मेरी आंखों से एक परदोस आने लगा। मुझे एहसास हुआ कि मैंने इस नींद में खुद को खुद ही डाल रखा था। मैं अपने साथ ही नहीं बोल रही थी। मैंने खुद को अभी कंफर्ट में डाल दिया था कि मुझे जिंदगी का बड़ा मकसद नजर आना बंद हो गया था। मेरी जिंदगी जमूद का शिकार इसलिए थी कि बतौर एक इंसान में ग्रो नहीं कर रही थी। मैंने अपनी नज़रों में अपना एक फिक्स इमेज बना रखा था। जिस इंसान को मैं निम्रा के तौर पे जाती थी वो मैं नहीं थी। तुम्हें अपनी जिंदगी को बदलता है, इस मसले का और कोई अमल नहीं है। नफीस ड्राइव करते हुए बार बार एक ही बात कह रही थी। उन्हें आज से अपनी जिंदगी का पियाना चलाने की जरूरत है। अल्लाह ताला भी इसकी मदद नहीं करता, जवानी मर्द खुद ना करे। मैं नफीसा काफ। सात 2 दिन था जब मैंने अपनी ज़ात का कंट्रोल अपने हाथ में वापस लिया था। मैंने खुद को हालात के धारे पर छोड़ने के बजाय खुद को अपने असल सेल्फ के करीब लाना शुरू किया था। 2 दिन और आज का दिन मेरे ऊपर की मौसम आए अच्छे बुरे, लेकिन जो सफ़र मैंने इस रोज़ शुरू किया था उसे इस दिन से ही मैंने खुद को बदलना शुरू किया था। तब्दीली अपने आप से शुरू होती है। जब आप खुद को बोलते हैं तो आप के अर्द गिर्द की सारी दुनिया बदलने लगती है। एक चीज़ है और एक को लाहिक होती है। एक होता है डिप्रेशन जो कि एक बीमारी है और ये सबको नहीं होती। एक इन दोनों के दरमियान का मकाम होता है। आम उदासी से ज़्यादा शदीद मगर डिप्रेशन से कम अगर इसका बरवक्त इलाज न किया जाए तो वो बीमारी में बदल जाता है। आज कई बरस बाद में इस किताब में वो सब लिखने जा रही हूँ जिसने मेरी इस बार एक दूर से निकलने में मदद की। और ये किताब उन्हीं लोगों के लिए है जो मेरी तरह इस दरमियानी मकाम पर कहीं ना कहीं लटके हुए आओ। ये किताब डिप्रेशन का इलाज हरगिज़ नहीं है। डिप्रेशन का अलान क्लिनिकल हेल्प की सूरत में लेना ज़रूरी है, लेकिन अक्सर लोग जिस कोड पर ईशन कहती हैं दवाई और स्ट्रेस होता है, इसका इलाज भी इस किताब में नहीं है। यह किताब सिर्फ आपको आपकी अनमोल ज़ात उसे शनासाई दिलाने के लिए लिखी गई है। मैं इन 33 अब्वाब में वो बयान करने जा रही हूँ जिसने मेरी इस तारीख दौर से निकलने में दुआ की। नसीर के साथ इस लॉन्ग ड्राइव से वापस आए मैंने एक फ़ैसला किया था अपनी हालत को बदलने का। मेरी कहानी को मैं रोक के आपकी कहानी की तरफ आते हैं। आपकी हालत इस वक्त क्या है? आप अपनी ज़िंदगी के किसी और में हैं, मुझे नहीं मालूम। आप अभी के किस मकाम पे हैं, मैं नहीं जानती। आपके मसाइल क्या हैं मैं नहीं समझ सकती, लेकिन मुझे इतना यकीन है कि चंद बातें मेरे और आपके दरमियान मुश्तरक होंगी। जैसे हमारी सी अदा जो हर शाम सूरज ढलते ही शदीद होने लगती है, अदारी एक सियाह खला की तरह आपके दिल में भी उतरी हुई है। दुनिया की मसरूफियात और खुशियाँ आपके दिल को वक्ती तौर पर भर देती हैं, लेकिन ये फिर से खाली हो जाता है। आप किसी ख़ास वाक़या के होने या किसी ने के हुसूल के मुंतज़िर रहे हैं कि जब वो होगा तो आप खुश होंगे। और फिर लोग कहते हैं और किताबें कहती हैं कि अगर अपने अंदर खुशी हो तो बाहर भी हसवस नहीं होती। यूट्यूब पर इसी चीज़ को ढूंढने का दर्स दे रहा होता है। अंदर की खुशी आखिर होती क्या है, ये बात दो अपनी ज़िंदगी में थोड़ा पीछे जाएं। चंद साल पहले तक ज़रा सा गुनाह होता वो लगा तो अल्लाह ताला नाराज़ है फ़ौरन से मुआफ़ी मांगी जाती थी। फिर दुनिया की गर्द आपके दिल पे बजने लगी। अब गुनाह भी होता है और एहसास गुनाह भी, लेकिन अंदर कुछ फिर का बन गया है। अब इतना है कि ये हमारा हक है कि हम जितने दुख से गुजर रहे हैं इसमें हम थोड़े से तली और चिड़चिड़े बन जाएं। अल्लाह ताला ने हमारे रवैये अब मसलफ़ाई होते महसूस होते हैं। मगर क्या वाकई आप इस वक्त कहाँ खड़े हैं? मुझे बूझने दें। एक ज़माने में आप दूसरों के साथ बहुत अच्छे थे, आपने उनके लिए कुर्बानियाँ दी, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने आपका दिल तोड़ा, आपको धुतकारा। अगर वो लोग आपकी ज़िंदगी से दूर जा चुके हैं तो कहीं राह चलते उनकी शक्ल देख लेने से सारे गम ताज़ा हो जाते हैं। अपनी कुर्बानियों और ख़िदमतों पे गुस्सा आता है। क्यों थे हम उनके साथ इतने अच्छे? मगर अब आप कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि वो लोग अपनी दुनिया में मगन अब से बेपरवाह हैं। शायद आपको किसी ला हासिल मोहब्बत की तमन्ना ने बहार कर रखा है। एक शख्स को मांगा अल्लाह ताला से जिसके हाथ में सारी ज़मीनें और सारे आसमान हैं। वो चाहता तो इस एक शख्स के दिल में आपकी मोहब्बत डाल देता। वो शख्स आपकी कदर करता, आपको तवज्जो और आपकी रोज के ज़ख्म आप सिर्फ इसको दिखाना चाहते थे, मगर वो आपका नहीं हो सका। इतनी नमाज़ों दुआओं और आंसुओं के बावजूद वो आपको नहीं मिल सका। वो ऐसे आपकी ज़िंदगी से निकल गया कि आपके हाथ खाली रह गए। शायद आप एक ऐसे मकसद की तलाश में सफ़र कर रहे हैं जिसने आपको थका दिया है। एक ख़ास नेमत जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती थी। आपकी खुशी इस एक से फिर थी। इसकी ने आपको अंदर से मिलाकर रखा है। इसके ना होने से सारी ज़िंदगी डिस्टर्ब है। खुशी और गम के मौके पर रिश्तेदार आयशा का सवाल करते हैं, कभी सामने और भी समझ में आ जाने वाली सरगोशियों की सूरत में शादी क्यों नहीं हो रही, जाब क्यों नहीं लगे रही।
इतने माह हो गए शादी को, अब तक खुशखबरी क्यों नहीं मिली? ऐसे जैसे आपकी उम्र का कैलकुलेट लोगों के हाथ में हमा वक्त मौजूद हो। और अगर मैं साल की उम्र का हिस्सा करीब आ रहा हो तो आप परेशानी के साथ खौफ का भी। शायद अगर आप इस खानदान में पैदा न हुए होते तो आपके बहुत से मसले हल हो जाते। ऐसा खानदान जहां आपको आली आज़ादी नहीं है, हर वक्त की रोक टोक है, वालिदैन आपको भत्ते नहीं है और बहन भाई हर वक्त लड़ते हैं या अटक पा रहे नहीं है जो होना चाहिए। आपको अपने अर्द गिर्द आइडियल लोग नहीं मिले, आप गलत लोगों में पैदा हो गए हैं। बहुत से मसले आपको ना दरपेश होते अगर आप इन लोगों में पैदा किए जाते जो आपको अच्छे लगते हैं, जिनको हर शय की आज़ादी हासिल है। शायद आपके अंदर एक तलब है जिसे सिर्फ माली आसूदगी ही भा सकती है, मुर्दा माली आसूदगी मिलके ही नहीं दे रही। आप हर चीज़ में खरीद सकते, आपको मैच तान के गुजारा करना पड़ता है और फिर हसरत भरी निगारान पर रहती है जिनको अल्लाह ने सब दे रखा है। एक बहन जिसकी शादी अमीर खानदान में हो गई, एक कजिन जो सब कच्चा अफोर्ड कर सकता है, एक दोस्त जो 2094 में देखे बगैर कारवेट को थमा देता है। ऐसी वसत आपको नहीं मिली। बचपन से लगता था कि मिल जाएगी। एक दिन आएगा जब आप बहुत अमीर होंगे, जैसे फिल्मों में होते हैं। आप अमीर और खूबसूरत भी होंगे मगर नहीं हो पा रहे, शायद भी नहीं होंगे। आप सिर्फ इंस्टाग्राम पर लोगों की खूबसूरत चीज़ें और सेल और तफर की तस्वीर ही देखते रहेंगे। शायद आपको भी अपनी ख्याली दुनिया बताने की आदत है। ये आपका एक ऐसा राज है जिससे कोई वाकिफ नहीं। आपने एक फर्जी दुनिया तख्लीक कर रखी है जिसके अंदर आपका एक मुख्तलिफ नाम है। आपकी शख्सियत बहुत खूबसूरत है। आपका मियाँ बहन सबब से मोहब्बत करते हैं, बल्कि नहीं, सिर्फ मोहब्बत काफ़ी नहीं, सबब से उनप्रिसिड भी हैं। आपका रोब इस फर्जी खानदान और फर्जी को लीज पे छाया है। आपके पास एक मनपसंद महजूब भी है जो हकीकी में आपको नहीं मिल सकता। जब आप तजा होते हैं तो आप अपनी कहानी बनाते हैं। ये बिल्कुल सादा बेज़र्री हरकत है जिसमें आप खुद से बातें करते हैं और आपके अर्द गिर्द हर शय आपकी पसंद की हो जाती है। इस कहानी में जब आप नाराज़ हो जाएं तो लोग आपको मनाने आते हैं। आप किसी के पीछे नहीं जाते, आप बेनियाज और बेपरवाह हैं। इस कहानी के दूसरे किरदारों की अपनी कोई जिंदगी नहीं होती, सिर्फ आप अहम हैं। आप मरकजी किरदार हैं, सबका काम आपको खुश करता है। शायद कोई था आपकी जिंदगी में जो आपका था। आप दोनों का एक बहुत अच्छा ताल्लुक था, लेकिन फिर आप एक के बाद एक ऐसा शख्स आपसे खो जाता है जिससे अपने खास मोहब्बत की होती है। आम कहती नहीं कि ओत आम दोस्त नाम कराबत दीरद में रहते हैं, मगर आपसे बेशक खास मोहब्बतें खो जाती हैं। हर में ताल्लुक खो जाते वक्त ही आपको मालूम होता है कि ये जल्द ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जब आपका महबूब मशख्स आपको ठीक से जाने लगेगा तो आपको नापसंद करेगा और दूर हो जाएगा। शायद आपकी ज़िंदगी में कोई दोस्त नहीं है, किसी के पास एक घंटा भी नहीं है आपके दुख मिलने के लिए। आपके गम इतने बड़े और कर्बनाक हैं कि किसी को भी रुला दे। इसलिए आपका दिल चाहता है कि जो भी आज शख्स आपसे मिली वो जल्दी आपसे मानूस हो जाए और वो आपसे खुद आपकी ज़िंदगी के बारे में पूछे। आपका दिल चाहता है कि लोग आपके गम सुन के आपको कवानस करें, आपको इन गमों से निकलने में मदद है, लेकिन लोग ऐसा नहीं करते। एक दो बार सुन लेते हैं और फिर वापस नहीं आते, ना जाने क्यों। आपका मसला जो भी है, लेकिन इसका अंजाम एक ही है, अदी शदीद अदी। इस उदासी से बचने के लिए आप अपनी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश करते हैं, खुद को डिसिप्लिन करने और अपने कामों में कामयाबी हासिल करने की कोशिश। कभी आप एक नया नाइम नबील बनाते हैं, पढ़ाई का काम का, सुबह जल्द उठने का, नमाजों का, मगर 2-4 उनसे ज़्यादा इस पर अमल नहीं किया जाता। कभी आपको लगता है कि आपका बढ़ता वज़न आपकी राह की सबसे बड़ी रुकावट है। आप नया डाइट प्लान शुरू करते हैं, पूरा दिन भूख काटते हैं, सिर्फ सेहत अफ़ज़ा अशिया खाते हैं और फिर आधी रात को फ्रस्ट्रेशन के हाथों फरीज खोल के जो जंक फूड सामने आए वो खा लेते हैं और फिर फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है। हर सुबह खुद से वादा किया जाता है कि आज से डाइटिंग शुरू, लेकिन हर दूसरी रात चीट में खा लेते हैं। कुछ दिन बाद वापस पुरानी रूटीन शुरू हो जाती है। कभी आप खुद को फिट करने के लिए एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं, लवाजमात खरीद के एक्सरसाइज की मशीन घर ला के तुम ज्वाइन करके या कोई वर्कआउट ऐप डाउनलोड करके दोवन बहुत अच्छा वर्कआउट करते हैं, लेकिन जाते हैं। आप एक दिन का बरियक लेते हैं और फिर बरियक कभी ख़त्म नहीं होता और ट्रेड में बस कपड़े सिखाने के लिए रू जाता है।
कभी आप काम करने का वक्त मुकर्रर करते हैं लेकिन प्रोक्रेस्टिनेशन काम को टालते रहने की आदत खत्म नहीं होती। रूटीन बन नहीं पा। कभी आप नमाजों की रूटीन बनाते हैं पे बेदार होने की कस्में खाई जाती हैं। हर रोज़ कुरान पढ़ने का अज़्म किया जाता है लेकिन तीसरे दिन से सती गालिब आ जाती है। क्या आपको भी हर गुजरते दिन के साथ महसूस हो रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी को ज़ाय कर रहे हैं? आप उसे नहीं गुजार रहे, ये आपको गुजार रही है। आप अपनी ज़िंदगी वाकई बदलना चाहते हैं लेकिन इसके लिए आप जो अच्छी रूटीन अपनाना चाहिए और पुल ही नहीं पाती। आपसे कुछ भी नहीं हो पाता। कितने काम हैं जो आप करना चाहते हैं लेकिन उनको शुरू करने का दिल नहीं चाहता। आप एक दायरे में घूमते रहते हैं और हर कुछ दिन बाद आप इसी मकाम पर वापस आ जाते हैं जहां से चले थे। इस दायरे से कैसे निकला जाता है? क्योंकि कामयाब लोग वही होते हैं जो इससे गुजरते भी हैं लेकिन इससे निकल भी जाते हैं। आप इसमें से कैसे निकलेंगे? मेरे हल्का अहबाब में मुख्तलिफ तरह के लोग हैं। कुछ बहुत ही हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको कोई ठीक से नहीं आता और कुछ मुसलमान ही नहीं हैं। लेकिन जब मैं ऐसे दोस्तों से मिलती हूँ जिनके साथ मेरा ताल्लुक दीन की वजह से बना था, मैं उनसे पूछती हूँ कि ईमान की क्या हालत है। ये मेरा और नफ्सिया का आपस में उमूमन पहला सवाल होता है और जवाब उमूमन बहुत अच्छा नहीं होता। लेकिन जब हम दोनों वहाँ से उठते हैं तो ये तय करके उठते हैं कि ईमान को वापस ताज़ा करता है। ऐसी शय है जिसकी हालत बदलती रहती है, दिल की हालत बदलती रहती है। किसी भी मसले का हल निकालने के लिए इसके असल की तरफ लूटना पड़ता है। चीज़ें जहाँ खोई होती हैं इनको तलाश किया जाता है। अगर पूरा अमर जा रहा हो तो इस मिट्टी की तरफ तवज्जो करनी होती है जिससे वो जन्म लेता है। इंसान ऐसी खुलुक है जिसके अंदर अल्लाह ताला ने अपनी रूह में से फूंका था। इंसान को खुद से मिलने के लिए अपने पैदा करने वाले की तरफ वापस होगा।